حدثنا احمد بن منی قال حدثنا یزید بن ہارون عن حجاج بن ارطاط عن یحیی بن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ. تو امام ترمذی فرماتے ہیں حجاج بن ارطاط لم یلقا ام یحیی بن کثیر. حجاج بن ارطاط نے زندگی میں کبھی یحیی بن کثیر سے ملاقات ہی نہیں کی چھ جائے کہ ان سے حدیث سنی. ایک آدمی ملا ہی نہیں. اس زمانے میں تو ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں تھا. تو جب تک آدمی جا کر خود نہ سنے اور اس کی شاگردی اختیار نہ کرے تو تب تک سننے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو زندگی میں کبھی ان دونوں کی ملاقات ہی نہیں. اور اسی طرح یحیی بن کثیر لم یلقا عن عروہ, حضرت عروہ سے یحیی بن کثیر کی کبھی زندگی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ جو سلسلہ ہے دو جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے. تو اس لیے یہ حدیث نہ صرف منقطع ہے بلکہ موضل ہے. تو اس لیے صرف ضعیف قرار دیا بلکہ کہا کہ اس کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے. تو میرے محترم دوستو, اور یہ موضل اور منقطع ہونا یہ روایت کا شدید ضعف ظاہر کرتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب بھی میرے پاس ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے, ثم یجی الی البقیع, پھر آپ بقیع تشریف لاتے فیستغفر لهم, اور ان کے لیے طلب مغفرت فرماتے. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی تہجد سے فارغ ہوتے تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غرفے سے جاتے تھے اور جا کر اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے تھے. تو میرے محترم دوستو, قبرستان ضرور جانا چاہیے اور جانا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیروا القبور فإنها تذکر الموت, لوگوں قبرستان کی زیارت کرو کیونکہ اس سے موت یاد آتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قبرستان ہی ایسی جگہ ہے کہ جو کہ تھوڑی بہت آدمی اگر دنیا سے بچا کر جا سکتا ہے تو وہیں جا سکتا ہے. آپ مسجد سے باہر نکلیں تو کتنے فتنے مسجد کے باہر آپ کو نظر آئیں گے, لیکن قبرستان میں جائیں گے تو الحمدللہ کوئی آپ کو دنیا کا فتنہ نظر نہیں آئے گا اور انسان اس مردوں سے عبرت حاصل کرے گا. تو اسی لیے جا کر دیکھیں کہ قبرستان میں کیسے کیسے لوگ سوئے ہوئے ہیں, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. خود ہمارے باپ دادا جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے, کبھی جا کر تو دیکھیں ان کا حال کیا ہے کہ ان کے قبر پر مٹی ہے کہ نہیں ہے. کبھی تو عزیزوں کے مرقد پہ جاؤ, یہ گھر تمہارے ہی بسائے ہوئے ہیں, اور جا کر دیکھو کیسے کیسے بادشاہ. جب بھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے صلیب خواہ جانے کا تو میں شیخ جابر, شیخ سعد اور اس طرح کے جو شاہان کویت ہیں, عمرہ کویت ہیں, تو ان کے مزاروں پر بھی جاتا ہوں, عبرت حاصل کرتے کہ کل تک جب وہ باہر نکلتے تھے تو کیا ان کا روب, کیا ان کا دبدبا, چیختی چلاتی ہوئی گاڑیاں اور ہزاروں پولیس والے ان کو سلیوٹ مارنے والے. اور آج ہے کوئی سوائے قبر کی مٹی کی کوئی چیز ان کی نگران نہیں, اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ان کا کوئی محافظ نہیں ہے. تو اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے جا گور غریباں پہ نظر ڈال با عبرت, جا گور غریباں پہ نظر ڈال با عبرت, کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. دنیا کیا ہے وہاں پر جا کر پتہ چل جائے گا. پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت, اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت, تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے, اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. میرے محترم دوست, لیکن ہم لوگوں نے بھی اسے ایک کاروبار بنا لیا, اور وہ کاروبار کیا ہے کہ وہ شب برات کو ہی جائیں گے, اور وہاں پر ادھر سے عورتیں بھی آتی ہیں, اور ماشاءاللہ عورتیں بھی اتنا سج دھج کر آتی ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں. تو اب فاتحہ تو جو ہوتی ہے تو وہ تو مردوں کے لیے ہوتی ہے, لیکن یہ سجنا دھجنا جو زندے آتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے, حسن خود بیتاب ہے جلوہ دکھانے کی. تو میرے محترم دوستو, اب یہ کہ کوئی عورت اتنا ٹپ ٹاپ اور اس قدر کاجل سرما اور اس قدر غازہ اور اس قدر پاؤڈر وغیرہ لگا کر قبرستان میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جا رہی ہے تو کس کے لیے جا رہی ہے؟ اور وہاں پر تو ان کو دیکھنے کے لیے کئی جو دل پھینک عاشق ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد
छेड़छाड़ी का वाकयात, और पता नहीं इस तरह। ये मत पूछिए कि वहां पर क्या होता है, बल्कि ऐसी हरकतें होती हैं कि मुर्दों को भी अगर अल्लाह ताला जिंदगी तो वो भी शर्मा कर रह जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये चीज़ गलत है। कब्रिस्तान की ज़ियारत करना चाहिए। औरतों की के लिए ममनू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया लान अल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर वल मुत्तखिज़ात अलैहिन्ना सूरज। अल्लाह ताला की लानत हो कब्रिस्तान की ज़ियारत करने वाली औरतों पर, और वहाँ पर चराग बत्ती का इंतज़ाम करने वाली औरतों पर। जो लोग जाते हैं ऐसे मज़ारों पर जो कि मशहूर हैं, वहाँ पर औरतें जाती हैं, और वहाँ पर जो औरतें जाती हैं तो मेरे मोहतरम दोस्तों कहते हुए शर्म आती है कि वहाँ तो इतने गंदे और गलीज कारोबार फैले हुए हैं अल्लाह के, मेरे मोहतरम दोस्तों। और आलम यह है कि जो कुछ हिंदुओं में जो कुछ बुराइयां हैं वो मंदिरों के पास होती हैं, और मुसलमानों में जितनी भी गंदगियां होती हैं वो कब्रों के और उसके अतराफ अकनाफ होती हैं। चर्स, भंग और नशे की चीज से लेकर जिना गिना हर चीज वहां पर मिल जाती है। ये किसकी वजह से? औरतों के वहां पर जाने की। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लानत की। तो कब्रिस्तानों की जियारत करनी चाहिए, लेकिन मज़ारों की नहीं। कब्रिस्तान जो आम कब्रिस्तान है जैसे सुलेबिखात है वो है। ये नहीं कि आप किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाएं और ये समझें कि मैं कब्रिस्तान की जियारत कर रहा हूँ। नहीं, जहाँ पर शिर्क व बिदात और खुराफात होते हैं वहाँ पर जाना भी गुनाह है। तो आम कब्रिस्तान की जियारत करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने जुमा या जुमेरात का दिन फिक्स कर रखा कि जुमेरात के दिन जाएंगे या जुमा के दिन जाएंगे। नहीं मेरे मोहतरम दोस्त, कोई भी दिन फिक्स करना, कोई भी रात फिक्स करना ये बिदअत है। आप कभी भी जाएं। बल्कि कितने ऐसे अल्लाह वाले हैं, कोई बहुत सारे नेक लोग हैं जो कि हर दिन वो असर की नमाज सुलेबिखात में जाकर अदा करते हैं। वहाँ लोगों के कफन दफन में शरीक होते हैं और कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं। तो हम लोगों को भी, हम लोग अपने बच्चों की मुलाकात के लिए जाते हैं तो कभी जाना भी चाहिए कि हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब जो कि जा चुके हैं तो चंद दिनों के बाद हम भी उन्हीं के पीछे जाएं। और आलम यह है कि कफन बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे। कफन सर पर बंधा हुआ है, जिस्म पर लपेटने की देरी, पता नहीं कब वो वक्त आ जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन कब्रिस्तान को ये कारोबार बना लेना जैसा कि हमारे यहाँ लोगों ने बना लिया है, ये गलत है। और फिर बहुत सारे लोग इस रात में ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों की छुट्टी कर देते हैं। ये हमारे इलाके में, जो हमारा आंध्रा का इलाका है, आंध्रा कर्नाटक वगैरह के इलाके में, ये इस रात को लोग मुर्दों की ईद कहते हैं। और बाकायदा घरों में सफ़ेदी की जाती है और घरों के अंदर बाकायदा रोशनियाँ की जाती हैं। और ये तस्वीर किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात रूहों की छुट्टी कर देते हैं और वो अपने अपने घरों को, अपने अपने अजीज़ व अकारिब के घर तशरीफ़ लाते हैं। तो दुनिया में जो जो वो खाना पीना पसंद करते थे तो वो चीज़ें उनके फातिहा में रखी जाती हैं। कोई मीठा खाना पसंद करता था, मीठा, अगर बिरयानी खाना पसंद करता था बिरयानी बनाई जाती है, पान खाता था तो पान, उसमें जर्दा भी खाता था तो जर्दा, अगर वो बीड़ी या सिगरेट भी पीता था तो वो भी उसके फातिहा में रखी जाती है। और हमारे मुल्ला साहिबान आकर उन तमाम पर भी फातिहा पढ़कर चले जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ और ये खुद हमारे घरों की हकीकत। मेरे बचपन में भी खुद हमारे घरों में यही चीज़ें होती। तो ये कोई गैर हकीकी बात, जो कुछ अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो मेरे मोहतरम दोस्त, अब हकीकत क्या है? क्या वाकई इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन मुर्दों की छुट्टी कर देते हैं? मेरे मोहतरम दोस्तों, थोड़ी सी हम ज़रा अपनी अक्ल को ज़हमत दें कि अगर अल्लाह ताला मुर्दों की छुट्टी कर दे, जो बंदा दोज़ख से भाग कर आया हुआ है, क्या वो दोज़ख में जाना पसंद करेगा? दुनिया में तो ये होता है कि जो जेल से भाग कर आ जाए तो वो कभी जेल नहीं जाता, और वो फिर जब तक पुलिस से ढूंढ कर तलाश करके ना पकड़ ले, लेकिन वो खुद कभी जेल में जाकर वापस नहीं गए। जेल से भागा हुआ जेल को जाने के लिए तैयार नहीं होता, दोज़ख से भागा हुआ क्या दोज़ख में फिर दोबारा जाने के लिए तैयार होगा? अगर कोई जन्नती है तो क्या वो जन्नत को और उसकी नेमतों को छोड़कर वो आना पसंद करेगा? और फिर अब जितने भी लोग हैं तो उनके जो अजीज व अकारिब हैं वो तो घर बदलते रहते हैं। मतलब हमारे इफ्तिखार भाई बीवी बच्चों के साथ है, हैदराबाद में नहीं रहते, वो तो क्या है यहाँ कोयत में रहते हैं।
अब इनके जो मरहूमिन हैं वो बेचारे कोयत तक का सफर कैसे करके आए, उनको क्या कैसे पता चलेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आदमी थोड़ा से भी अगर अक्ल बसीरत से काम ले तो ये अकीदा ही एक ढोंग मालूम होता है। और हकीकत यह है कि हिंदुओं के साथ रहते रहते उनके बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ गई हैं। हिंदुओं में भी ये है कि जो रूह है इंसान की वो कभी फना नहीं होती और वो आती जाती रहती है। और ये कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसके आमाल के हिसाब से फिर वो दूसरा जन्म लेता है। अगर अच्छा है तो वो फिर कोई ऋषि मुनि होकर पैदा होगा, अगर कोई वो बुरा है तो कोई कुत्ता सुअर या बिल्ली की शक्ल में आएगा। तो इस तरह अगर उनके अकीदे को ले लिया जाए तो ये जितने भी कुत्ते बिल्लियां हमको नजर आ रहे हैं तो ये सारे के सारे उन्हीं के बाप दादा हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अकीदा ये बिल्कुल गलत है और इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि जो भी इस दुनिया से चला गया वो दुनिया में फिर वापस कभी नहीं आ सकता। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग उहद में शहीद हुए। बेचारे छोटे छोटे बच्चियां छोड़कर वो चले गए थे और बहुत ज्यादा कर्जा भी उन्होंने छोड़ रखा था। तो हजरत जाबिर बड़े परेशान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से को देखा, कहा कि या जाबिर माली अराका मुतसिरा, जाबिर मैं आपको टूटा हुआ पा रहा हूँ, आप एकदम बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है। तो रसूल यौम उहद व तरका अयालन व दीनन, मेरे बाप जंग उहद में शहीद हुए और बहुत ज़्यादा कर्जा वो छोड़कर चले गए हैं और छोटे छोटी बच्चियां उन्होंने छोड़ी हैं, तो जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला उबश्शिरुका बिमा लक़ी अल्लाहु बिही अबाका, क्या मैं तुमको इस बात की खुशखबरी ना दूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरह तुम्हारे बाप का इस्तिक़बाल अल्लाह ताला ने कैसे किया। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा कल्लम अल्लाहु अहदन किफ़ाहन